Hello everyone, this is module 1 lecture number 4 and it is a continue lecture of design of singly reinforced beam by working stress method. In the previous lecture we have discussed about the procedure which we followed to designing a rectangular beam by the working stress method. In this lecture we discuss a numerical how we solve and we design our rectangular sections beam. Okay. So, first of all introduce to myself Indresh Kumar Singh, faculty of Department of Civil Engineering BBD NIIT Lucknow. Okay. So, this is your subject name, this is a design of concrete structures and your AKTU code KC is 601. Okay. Module 1 lecture number 4, in this lecture we have discussed about the numerical and one condition, that is the over reinforced section. We have discussed in the previous class कि there are the 3 conditions whenever we designing a singly reinforced or doubly reinforced beam. Means this is the valence section. In the valence section the compressive characteristic stresses of the concrete and the compressive tensile stresses in the steel both are reached at the same time, means the yielding stress at the same time. Then there is a valence section. Okay. In that section we have put the C equal to T, but in the under reinforced section we provided less area of reinforced section which is required for the valence section. Okay. In that concrete does not reach their compressive characteristic strength, but still reach their the yield points. That is why that is known as the under reinforced section. But in the over reinforced section, in this section one of which the tensile reinforced steel area is more than required for the valence section. Okay. So, in that whenever we provided the more area of steels, then what happened on the cross section, whenever we applied a load, then at the bending there is the stresses created and the characteristic compressive characteristic stresses reach there the permissible stresses of concrete first. What in the reinforced steel bar they are not reached to their permissible stress at the same time. Okay. That is why this is the over reinforced section. As shown in this diagram, there is the stress diagram and here we see that it is the CVC, means characteristic compressive strength of the concrete, and it reaches the extreme permissible value. But here we draw this line, means it not reach this permissible stress. Okay. Why? Because we provided the more reinforced bar. Okay. So, in over reinforced section there is the more steel. ठीक है. तो ये 3 टाइप के जो सेक्शंस को मैंने डिवाइड किया था, वैलेंस, अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ये आपका पता होना चाहिए. ओके. तो यहाँ पे लिखा भी AST ग्रेटर देन जो हमने प्रोवाइड की थी, द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट विल रीच फर्स्ट ड्यू टू द ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट रिजल्टिंग इन KD ग्रेटर देन KVD. अच्छा, अब ये भी चीज़ आगे KD और KVD क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रल एक्सिस हम बना रहे थे किसी भी बीम में, ओके, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या, बैलेंस सेक्शन में क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस जो हमने मानी थी डिस्टेंस K इंटू D, ये अभी न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करेंगे तो सारी वैल्यू पता चलेंगी आपको. और इसमें हमने बनाया था कि अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है आपका, ठीक है, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाएगी इस बैलेंस वाले सेक्शन में. ये क्या है, बैलेंस न्यूट्रल सेक्शन था. और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस कुछ यहाँ शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है. तो वही लिखा है आपका यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ द KD मे बी ऑब्टेन बाय इक्विवेलेंट मूवमेंट ऑफ एरिया कंक्रीट इन कंप्रेशन एंड इक्विवेलेंट एरिया टेंसाइल स्टील इन टर्म ऑफ द कंक्रीट. तो ये कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों को इक्वल करके कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है. तो वो हो जाएगा आपको. तो ये आप समझ लीजिए
मूवमेंट का फार्मूला हमने निकाला था 1/2 CVC KJ BD स्क्वायर। अब देखिए पहले हमने जब बैलेंस सेक्शन में निकाला था तो वहाँ FCVC रख दिया था, तो वो क्यों रखा था, इसीलिए क्योंकि देखिए ये हमारा CVC क्या है, परमिसिबल उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो इसको तो गेन कर लेगी, तो हम कंप्रेशन वाले को रखेंगे, तो ये 1/2 सिग्मा KJ, वेयर K इज द कांस्टेंट, J इज द कांस्टेंट, तो J क्या होता है 1 - K/3, ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा VD डायमेंशन। तो ये मूवमेंट का फार्मूला है जो रेजिस्टिंग मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप अब समझ गए हैं कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन जो रहेगा रेक्टेंगुलर बीम से क्रॉस सेक्शन के लिए, उसमें जब लोड अप्लाई करेंगे बाई वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अगर मैं उसको डिजाइन करूं तो उसमें जो हमारा एक मॉडुलर रेशियो m है उसको मैंने ले लिया एस कोड के हिसाब से 380/3 सिग्मा CBC, ठीक है। दूसरा उसका फार्मूला हो गया है ES/EC, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ES स्टील एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, उनका रेशियो उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने देख लिया कि जो रेनफोर्स बीम सेक्शन है वो हमारा 3 कंडीशन में हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज KD हमने एज्यूम की है इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। तो वो क्या होगा कि अगर बैलेंस सेक्शन के लिए KD डिस्टेंस है तो उसमें क्या होगा हमारा कि दोनों की जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होंगी वो सेम टाइम पे रीच करेंगे। बट दूसरी कंडीशन अंडर रेनफोर्स हुआ, अंडर रेनफोर्स में हुआ कि जो स्टील की एरिया जो क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि स्टील में परमिसिबल पहले पहुंच जाएगी और कंक्रीट की हमें एक्सट्रीम तक की नहीं मिल पाएगी परमिसिबल स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस, तो वो हमारा होगा अंडर रेनफोर्स। इसमें क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस शिफ्टेड इन द कंक्रीट सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा कि हमारा KD जो होगा जो बैलेंस सेक्शन के लिए था वो उससे ज़्यादा हो जाएगी नई वैल्यू, तो उसमें क्या होगा कि एरिया ऑफ रेनफोर्स सेक्शन की ज़्यादा प्रोवाइड करा देते हैं। इसका मतलब होगा कि कंक्रीट तो अपनी परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंच गया लेकिन एरिया ऑफ रेनफोर्स ज़्यादा है तो वो नहीं अभी पहुंच पाएगा और इसमें उसका यूज नहीं हो पाएगा, तो ये होते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपको बताइए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिंगली रेनफोर्स बीम में। अब बात आई है कि जो डिजाइन के लिए फार्मूला बताए थे मूवमेंट ऑफ, जितना अप्लाई कर रहे थे उतने मूवमेंट ऑफ रेजिस्टिंग जो जनरेट होगा उसका फार्मूला बताए थे 1/2 छोड़िए सीधे याद रखिए RVD स्क्वायर, वेयर R क्या है 1/2 सिग्मा CVC इंटू JK, ठीक है। K क्या है कांस्टेंट है, J क्या कांस्टेंट है, जब हमें मिल जाएगा तो K इक्वल टू हम लिख देंगे 1 - आपका जो K/3, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको कि ये देखना है कि सिंगली रेनफोर्स प्रॉब्लम्स जो डिजाइन करेंगे वो कितने टाइप से बन सकती हैं। तो आपके सिलेबस में जो बन सकती हैं वो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आ सकता है वो हो सकता है आपका टाइप 1 में, टू डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द गिवन क्रॉस सेक्शन एंड W बिट। मतलब आपको डायरेक्ट कोई बीम दे दी गई और उसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, ये पहली टाइप की प्रॉब्लम होगी। सेकेंड टाइप की क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि टू डिटरमाइन द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील टू गिवन क्रॉस सेक्शन एंड अप्लाइड मूवमेंट। सेकेंड में क्या होगा अप्लाइड मूवमेंट आपको दे दिया जाएगा और स्ट्रेसेस पूछी जा सकती हैं। तीसरे में क्या हो सकता है कि आपसे मूवमेंट पूछा जाए और एरिया पूछी जाए कितनी कंप्रेशन कंक्रीट सेक्शन की, ओनली गिवन टू डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ स्टील का कंप्रेशन में कितना रहेगा टेंशन में, तो वो सारा पूछा जा सकता है और क्रॉस सेक्शन गिवन होगा। फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम क्या होगी कि डिजाइन करनी है आपको, तो इसमें हमें क्या निकालना होगा B और D डायमेंशंस फाइंड करने लगे। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं चाहे वो आपके वर्किंग स्ट्रेस से करो या लिमिट स्ट्रेस से करो, लेकिन जो टाइप्स डिवाइड होंगे वो ये हैं कि इस तरीके से आपको क्या क्या गिवन दिया जा सकता है और क्या कैलकुलेट करना है आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल यहाँ पर, इसको हमें करना है WSM से, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। क्या दिया गया आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में जो चीज़ गिवन होती है उसको लिखना समझिए और क्या डायग्राम बना सकते हैं। तो डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब आपको सबसे पहले दे दिया गया है कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आएगा, पहले ही समझ गए। तो सबसे पहले आप समझ गए हो कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जो हमने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में डिवाइड की। तो फर्स्ट टाइप जो रहेगा ये देखो फर्स्ट टाइप का, तो इसी बेसिस पे ये न्यूमेरिकल है।
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है आर वी डी स्क्वायर, ठीक है। अब सोचिए हमें आर चाहिए, वी डी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर इम्पोज लोड कैरिड बाय सिंपली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स आरसी बीम हैविंग इफेक्टिव स्पेन 5 मीटर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोई एक हमारी सिंगली सपोर्टेड ये बीम दी गई है और जिस पे यूडीएल हमारा क्या लग रहा है, लोड अप्लाई हो रहा है। इस पे कितना स्पेन है इसका, ये 5 मीटर इसका स्पेन दिया गया है, ठीक है। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर इम्पोज लोड कैरिड बाय सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स बीम हैविंग इफेक्टिव स्पेन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, ये बी डी दी गई। मतलब इसका अगर क्रॉस सेक्शन बनाने की बात करें तो ये दिया गया है, ये 300 आपको बी की वैल्यू दी गई होगी और ये 550, ध्यान से देखिएगा, ये 550 आपको डी की वैल्यू दी गई है टोटल, ठीक है। ये टोटल दी गई है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया बी इंटू डी। रेनफोर्स विद 5 रेनफोर्स दी गई जिनका डाया दिया गया है 20, ठीक है। तो ये डायमीटर भी दिया रहता है 20 mm उसका रेनफोर्स का, और कितनी रेनफोर्स प्रोवाइड की गई 5, लेकिन सिंगली है तो इसका मतलब ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है उसी को मैं यहाँ पे बनाता हूँ फिर से। ये इस तरीके से कहीं पे न्यूट्रल एक्सिस होगी तो यहाँ पर ये आपको इस तरीके से क्या किया गया है, ये इन्होंने रेनफोर्स प्रोवाइड किए। वो थोड़ा सही से नहीं बनाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक कवर भी प्रोवाइड कराना है हमको, इतना रहेगा, ठीक है। ये हो गया सही डेप्थ, ठीक है, क्योंकि बाहर रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, वो हमारी कवर रहती हैं। तो अब ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया, इस पे बीम पे दे दिया गया अगर डब्ल्यू लोड हो रहा है हमारा, तो कौन सी कंक्रीट दी गई है देख लो ध्यान से, M15, ओके। और यहाँ पर स्टील कौन सी दी है, 250 FE 250, ये स्टील की ग्रेड होती है, FE 250, FE 415, FE 500। और कंक्रीट की जो होती हैं वो M15, वेयर M क्या है हमारा, स्टैंड फॉर मिक्स, और 15 क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। परमिसिबल स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाएगी M15 के लिए, ये हो जाएगी आपकी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेट करते हैं, बताते हैं कैसे। अब इसमें हमें ये मूवमेंट निकालना है, वी डी स्क्वायर दिया है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन हमारा है सिंपल सा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे बना हुआ है कि 5 रेनफोर्समेंट दी गई हैं जिनका डायमीटर आपको दिया गया 20 mm, पाँचों यहाँ पे बनाई गई हैं। टोटल डेप्थ जो आपको डी स्मॉल लिखा गया है, ठीक है, तो हमें दी गई है 550 mm और 300 इसकी विड्थ हो गई है। तो हमने क्या किया, इसका सबसे पहले एक स्ट्रेस डायग्राम बना लिया है। हमको पता है स्ट्रेस डायग्राम कि इसकी परमिसिबल स्ट्रेस जो होगी वो CVC हो जाएगी, सिग्मा CVC, और वो कितनी होती है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये देखिए मैंने बताया किसके लिए है, ये हमारी है M15 के लिए। ध्यान रखिएगा, ये टेबल में दी है कोड में। M15 के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस होगी वो 5, M20 के लिए जो होगी वो आपकी 7, ठीक है, और M10 के लिए जो होगी वो आपके लिए 3, और इसी तरीके से पूरी टेबल दी गई है, आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने CVC तो लिख लिए 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो ये कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो कहाँ हो रहा होगा, इस ट्रेंगल के सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड कहाँ होगा, जितनी भी ये हमारे x इक्वल टू KD लिख दिया है तो वो हमारा KD जो है उसका KD/3 पे होगा, ठीक है। कितना, क्योंकि ये यहाँ से KD/3 होगा और इधर से 2/3 जितनी भी डेप्थ होती है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, इस पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ये टेंसाइल फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा होगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारा क्या होता है, लीवर आर्म होता है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर इक्वेटिंग मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन एंड इक्विवेलेंट एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील इन टर्म ऑफ कंक्रीट, ये लिखना है हमको। ध्यान रखिएगा कि जितनी भी एरिया ऑफ कंक्रीट की जो कंप्रेशन में है, जो टेंसाइल में हमारी एरिया रहेगी इक्विवेलेंट एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील की, वो हम इक्वल करेंगे, ठीक है, इन टर्म ऑफ कंक्रीट। कैसे होगी, न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो हमें पता है कि इसकी विड्थ कितनी दी गई है b, और ये डिस्टेंस कितनी दी गई है x, तो हम इसको bx लिख सकते हैं। ये देखिए लिखा गया है, कहाँ गया, इसकी एरिया, इस वाले स्ट्रेस की, सॉरी, तो इसकी क्या हो जाएगी 1/2 v इंटू ये वाली हो गई। तो आपने लिख लिया है v इंटू x²/2 इक्वल टू MAST d माइनस x, ठीक है, d में से x माइनस कर देंगे तो ये उस कंप्रेशन की आ जाएगी, और ये हमारी हो जाएगी 1/2 v इंटू x
उसकी एरिया हो गया इंटू x/2, ठीक है, तब आएगा b इंटू x/2, तो bx²/2 आ जाएगी कंप्रेशन जोन की। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि मॉडुलर रेशियो कैसे निकालोगे, वो m इक्वल टू 280/3 सिग्मा सी दिया जाता है। सिग्मा सी जो परमिसिव स्ट्रेस 5 है, किसके लिए, M15 के लिए। हमने देखा कि m की वैल्यू 19 आ गई। हमको रेनफोर्समेंट कितनी दी गई है, 5, उनका डायमीटर कितना दिया गया है, 20 mm। तो हमें पता है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, π/4 d² से हमने एरिया निकाल लिए कि टोटल स्टील की एरिया निकल आई। अब अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू गिवन है इक्वेशन में, x की वैल्यू निकाल लें, x क्या है हमारा, k इंटू डी, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। तो इस इक्वेशन में अगर हम ये ध्यान से देख लो, इक्वेटिंग मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन इक्विवेलेंट एरिया ऑफ टेंसाइल इन द कंक्रीट, ठीक है। जिसके ना समझ में आए वो ये इस बात को समझ लो, ध्यान से बता दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बना दूं स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका सॉरी ये ठीक है जितना भी लग रहा है, इस बैक में आते हैं, ये जो जोन था हमारा, इसकी एरिया कितनी होगी, 1/2 इंटू एक्स इंटू सिग्मा CVC, ठीक है। अगर इसकी हम इससे कंपेयर करें तो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल 1/2 V इंटू एक्स, और मूवमेंट जब लेंगे एरिया का तो सेंट्रॉइड से तो कितना होगा, x/2, तो हमारा कंप्रेशन में क्या आ गया, V इंटू x/2, ये मूवमेंट ऑफ एरिया आ गया। अब कह रहे हैं टेंशन जोन में आइए, तो टेंशन जोन में क्या हो जाएगा हमारा, जितनी भी एरिया AST दी गई है किसकी, आपकी जितनी भी रेनफोर्स प्रोवाइड करा है हमने न्यूमेरिकल में, ठीक है, वो वाली एरिया। और क्या रखना है हमको, ये इक्विवेलेंट जब एरिया ऑफ कंक्रीट की जाएगी तो m फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा। m कैसे आता, ये आपको इक्विवेलेंट एरिया ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट के रखनी होती है, तब वहाँ पे हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कुछ भी आएगा, चाहे स्ट्रेस हो, स्ट्रेन हो, एरिया हो, तो m फैक्टर यूज कीजिएगा। मॉडुलर जो आपका दिया गया है ये, इसको यूज करेंगे। और इनटू आपका क्या होगा, यहाँ से लेकर न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस, क्योंकि यही तो होगी डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो ये कितनी हो जाएगी, d - x, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन ये वाली बन गई। इस इक्वेशन में हमें पता है v की वैल्यू, m की वैल्यू हमें पता है, कोड से दिया गया फार्मूला जिम्सन में हमने बताया था, उससे हमने निकाल लिया। यहाँ पे मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी नहीं दिया है, ये AST निकाल लिया। जब वैल्यू पुट की तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, इक्वेशन बनी, x की वैल्यू आ गई 247.4। तो x वी नेक्स्ट डिटरमाइन द कंपेयर इट विद x एंड वी नो टाइप ऑफ द सेक्शन। अब हमने x की वैल्यू ये निकाल के रख ली कि न्यूट्रल एक्सिस हमारी यहाँ पर आनी चाहिए जब हमने इक्वल किया है एरिया मूवमेंट से। अब कह रहे हैं एक्स वी से हम डिनोट करें, एक्स वी क्या कह रहे हैं कि देखें ये डिनोट करो कि हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है। तो इस फार्मूले से करेंगे तो के डी इक्वल टू, ये फार्मूला भी एक रहता है आपका, के की वैल्यू जो रहेगी वो फार्मूला जो बता रहे थे वो याद रखिएगा, 1/1 प्लस सिग्मा एस टी अपान एम सिग्मा CVC। ओके, इसको और भी आपको कोड में दिया गया है, के इक्वल टू क्या होता है, एम सिग्मा CVC डिवाइड बाई एम सिग्मा CVC प्लस सिग्मा ST, ठीक है। जिस के की बात कह रहे थे कि कहाँ से आएगा, ये आप ध्यान रखिए, कोड में दिया गया है फार्मूला आपका IS 456 2000 में। तो के डी जो हमें जूम कर रहे थे, तो के आप अगर फार्मूले से निकालोगे तो हमारा एम सिग्मा CVC अपान एम सिग्मा CVC प्लस सिग्मा ST से, वहाँ पे m क्या है, हमने मॉडुलर रेशियो जो आपको पता है m की वैल्यू 280/3 सिग्मा c से निकाल लेंगे। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट इसी फार्मूले को जो टर्म में कन्वर्ट किया गया, कन्वर्ट किया अगर सिग्मा CV से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा इस टाइप में, ठीक है, दूसरे फॉर्म में। तो के डी यहाँ पर अगर हम वैल्यू सभी रख दें तो हमारी वैल्यू आ रही 0.4 डी, और डेप्थ की वैल्यू में पता है, तो हमने जब पुट की तो हमारी 222 आई, लेस देन आ रही है जब हमने एरिया मूवमेंट से कम किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हमारी डेप्थ है तो ये क्या है, कम आ रही है, जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस की ये वाली डेप्थ है ये हमारी कम आ रही है, जो हमने के डी ए निकाला है इतनी आ रही है, ठीक है। तो जब ये हमारी ज़्यादा आ जाएगी, सॉरी के डी ए यहाँ तक है, कहाँ गई, ये वाली के डी इतनी थी और ये हमने कैलकुलेट की है, अभी एक्स निकाला था, तो ये हमारी ज़्यादा आ गई। इसका मतलब क्या हो गया,
ये हमारे सेक्शन में अगर हमने बताया था न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो जाए किसमें, जब हमारी आ गई न्यूट्रल एक्सिस से कैलकुलेटेड टेंशन जोन में, तो फिर वो हमारा सेक्शन क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स हो जाएगा। हैंस सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स। ओके, तो जब ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, अब उसका देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर वी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि 1/2 सिग्मा सी बी सी वी इंटू एक्स और डी माइनस एक्स वाई 3। ये क्या है, ये हमारा जो फोर्स है, शियर स्ट्रेस है, दिस इज द एरिया है, और ये क्या है, ये लीवर आर्म की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये मोमेंट, अब आप चाहो तो आर वी डी स्क्वायर भी यूज कर सकते हो वहाँ से, क्योंकि एम निकाल ही चुके हो आप। ठीक है, के की वैल्यू आप फाइंड ही कर चुके हो, जे निकाल ही लोगे 1 - k/3। ठीक है, ये तीनों अगर पता चल गए तो आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1/2 क्या होता है, सिग्मा सी वी सी जे के। ठीक है, इससे आप आर की वैल्यू निकाल लोगे, फिर मोमेंट में आप रख दोगे आर वी डी स्क्वायर, जब उससे निकालोगे तब भी वही आ जाएगा। चाहो तो आप स्ट्रेस इंटू एरिया वी इंटू एक्स और लीवर आर्म मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा मूवमेंट का एक ये भी फार्मूला होता है, तो इसको यूज करोगे तो ये वैल्यू आपकी इतनी आ रही है। बीम इज सिंपली सपोर्टेड, यूडीएल है तो सिंपली सपोर्टेड पर अगर यूडीएल हो रहा हो तो उस पर मूवमेंट कितना आता है, WL²/8 आता है। ठीक है, तो जितना मूवमेंट यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया है वो मूवमेंट अगर मैं रख दूँ यहाँ पर तो W5² 8 आ गया, तो कितना हमारा सेल्फ वेट आ रहा है, वो 28 kN/m आ रहा है। ठीक है, ये वाला। अब इसमें हम ये सेल्फ वेट हमें अगर निकालना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, सेल्फ वेट निकाल सकते हो। ठीक है, सुपर इम्पोज लोड जो रहता है वही ये आ जाएगा 20। अब ये हमने देखा 0.3 × 0.6 ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम में मल्टीप्लाई किए हैं इसका टोटल वॉल्यूम से डेंसिटी, तो ये हमारा आ जाएगा, ये 0.6 क्या हो गया, यहाँ पर हमने 45 इफेक्टिव कवर ले लिया। तो आप देखिए यहाँ पर कि जो 555 है, अगर ये इफेक्टिव कर्व हम 45 ले लें तो फिर क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ बात की हो गई। तो आपने ये समझ लिया इस न्यूमेरिकल में कि न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, पहले सब बना लिया, इस पर कितना लोड आपका अप्लाई हो रहा है वो आप समझ गए हो। ठीक है, यहाँ पर देख लो ध्यान से, सारे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं सब जान जाइए, और यहाँ पर हम लोड W की वैल्यू निकाल लेंगे। सेल्फ वेट जब निकालना होता है तो वो हमारा टोटल वॉल्यूम जो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा इतना सेल्फ वेट। सेल्फ सुपर इम्पोज वेट कितना आएगा, सेल्फ वेट माइनस कर दो, जैसे बीम का आ गया ना टोटल इम्पोज लोड, और बीम का दोनों का आ गया आपका इतना लोड। ठीक है, ये वाला, तो हम इसमें से सेल्फ वेट कंक्रीट का निकालेंगे। कंक्रीट का 25 उसकी डेंसिटी रख दी, टोटल वॉल्यूम रख दिया, तो हमें टोटल वेट पता चल गया यहाँ पर। तो वो वेट जब पता चल गया आपका, तो फिर हमने क्या किया, उसको माइनस कर दिया, तो जो बीम के ऊपर बचेगा वो सुपर इम्पोज हो गया, वो आपका 23 kN आया। तो इस तरीके से ये तो आ गए यहाँ पे बाद की हमारी स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है बीम पे। ठीक है, आरसीसी का क्या किया यहाँ पर हम लोगों ने किया है, ये ध्यान रखना है। ये हमने पहला क्वेश्चन किया है किससे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो हमने टाइप 2 का बताया था। इसमें आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करनी है, जो कि आरसी बीम में 3.6 इफेक्टिव स्पेन दिया गया है। कोई बीम हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया आपको B × कैपिटल D दिया, देख लो वही बीम दी गई है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल D लिख दिया, मतलब इफेक्टिव कर्व 45 लिए थे वो माइनस कर दो। विद 4 इस बार रेनफोर्स कितनी दी है, 4 दी गई है 20 mm बार की, जो ये ध्यान रखिएगा डायमीटर है। एंड क्लियर कंक्रीट कवर यहाँ पे 25 दिया, तो 45 नहीं माइनस करोगे, अगर नहीं दिया तो ले सकते थे, 25 दिया गया, 25 ही लेते बीम में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारी डी आ जाएगी इफेक्टिव स्मॉल डी। द बीम इज लोडेड विद अ सुपर इम्पोज लोड इतना 80 kN। इस बार स्मॉल W की वैल्यू आपको सुपर इम्पोज लोड जो है वो दे दिया गया। तो सेल्फ वेट निकाल के तब आप टोटल यूडीएल निकालेंगे। ठीक है, टोटल क्या होता है, सुपर इम्पोज लोड और जो उस बीम का रहेगा। ठीक है, बीम का कैसे निकालोगे ये जान लो, उसकी डेंसिटी से क्रॉस सेक्शनल एरिया टोटल वॉल्यूम और इनटू जो उसकी डेंसिटी रहेगी 25 माइनस मल्टीप्लाई कर दो। m की वैल्यू आपको दे दी गई इस बार। ठीक है, तो पहले लोड निकाल लो, mx क्या आ जाएगा, सिंपली सपोर्टेड है यूडीएल है, WLY/8 आ गया। यहाँ पे हमने मोमेंट निकाल लिया, इक्वेट वही इक्वेशन कर दीजिएगा आप, यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी ये इक्वेशन की। फिर हम फार्मूला ये वाला मूवमेंट का लगाएंगे। ठीक है, यहाँ मूवमेंट की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से आप सिग्मा CBC इतना निकाल ले रहे हो परमिसिबल, यही पूछा गया आपसे। ठीक है, उस क्रॉस सेक्शन के, और आपने अगर टेंसाइल वाला मूवमेंट रख दिया
तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, FST आपको चाहिए वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, देख लो सिंपल सी स्टेप्स हैं। अगला एक क्वेश्चन दिया गया, डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। तीसरे टाइप की प्रॉब्लम है कि इतनी एरिया यहाँ पर रहेगी। तो ये वही सिंपल सा एक्स के वी डी हमने मान लिया, सिग्मा सी वी हो गया, सिग्मा एस टी हो गया, आपका स्ट्रेस डायग्राम हो गया, के वी कैसे निकलता है ये फार्मूला आपको बताए हैं, इस फार्मूले का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप एम निकाल लीजिए, जे निकाल लीजिए, आर वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जब रख देंगे तो मूवमेंट आप इसमें रखोगे आके, यहाँ से इतना मूवमेंट आ गया, अब AST निकाल लीजिए आप। ठीक है, सिंपल सा है। तो जितने टाइप्स की प्रॉब्लम डिवाइड की थी वो सारे टाइप की प्रॉब्लम भी इसमें डिस्कस कर ली मैंने। ये आपका था वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से जब आप क्वेश्चंस करेंगे वो आप जान लीजिए कैसे करने होते। सिंपल सा एक प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर आपको बताएं, सब वैल्यू पुट करते जाइए, सॉल्व होते चले जाएंगे। कुछ वैल्यूज़ हैं जो कोड से आपको लिखनी पड़ेंगी, वो कोड IS 456-2000 आप पास में रखिए, उससे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिट स्टेट मेथड। ओके क्लास, थैंक यू।